So today we are going to have uh, how to create a linked list. Okay, linked list कैसे create करेंगे that I'm going to tell you. Okay, so linked list consisting different nodes. Okay, linked list में क्या होता है, different nodes होते हैं and that different nodes consisting different data also. Okay, different data also we can store into it. Okay, so hence we can create the user defined data type. Okay, we have to create user defined data type to store that data. Okay, to store the particular data into it. Okay, so how to create a linked list. Okay, okay, so as we all know, node consisting different data. Okay, node consisting different data. Okay, different types of data that node can have. Okay, so this node recently, initially we are considering our node consisting only two part. That is, first is data part and second is the link part. Okay, first is data part and second is link part. Okay, it's a data part and it's a link part. Okay, the node consisting two parts, data part and link part. Initially we are considering that data has a single value and the link. Okay, link consisting the address of its next node. Okay, but remember, initially our linked list is empty. Initially our linked list is empty, means there is no any node. Okay, that means there is no any node initially. Okay, so what will happen if the linked list is empty? That means there is no node. So we can say that our head part consisting null value. Okay, head, that is nothing but starting point. Okay, head is nothing but a starting point. So starting point consisting null value, that means that start doesn't have any address. Okay, उस start में कोई भी address available नहीं है. Okay, initially. Okay, initially that head part or start part doesn't have any address. Okay, so head, or we can say that start head, or we can say that start. Okay, head or start. Head is nothing but स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, इस पर्टिकुलर हेड और स्टार्ट हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, एज पर आपको जो नाम देना है. ओके, आर यू गेटिंग? आपको जो भी नाम देना है आप उसको नाम दे सकते हैं. ओके, आइदर वी कैन गिव हेड और स्टार्ट. ओके, so initially if linked list is empty, if linked list is empty, then what will happen? The node, sorry, the head part consisting what value? Head part consisting what type of value? Null value. Okay, head part consists null value initially if linked list is empty. अगर लिंक लिस्ट हमारा empty है, means लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, that means our link that particular head part consisting null value, that means that head part do not point any other node, किसी भी नोड को वो point out नहीं कर रहा है. Okay, initially. Okay, now if initially head is null, head हेड, वी आर हम लोग हेड पार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग हेड कंसीडर कर रहे हैं, हेड एंड हेड कंसीडर कर रहे हैं. हेड इक्वल टू व्हाट? यू हैव टू से नल. ओके, हेड को हम लोग नल कंसीडर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, नाउ नाउ वी नीड टू इंसर्ट वन नोड. हमको क्या करना है? एक नोड इंसर्ट करना है. इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नोड क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, एंड टू क्रिएट अ नोड, दिस नोड इज यूजर डिफाइंड. This node is user defined type. Okay, so this node can be created with the help of one user defined data type, that is nothing but a structure. Okay, that is nothing but a structure. So we have to use one structure. Okay, we have to use one structure data type, struct data type. Okay, so we need to define it. How to define struct? With the help of this struct keyword we can define structure, user defined data type, struct. Now we are going to give a name, that is node.
node. Okay, node. Struct node. Here the part of node, okay, these are nothing but the parts of node, so these we have to define inside the structure, okay, so that this will become the part of that particular node. Okay, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी नोड में हम लोग पार्ट्स डिफाइन करने वाले हैं वो हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, नोड्स जो क्रिएट होने वाले नोड्स में जो पार्ट्स है उनको हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफाइन करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पर हमको वो पार्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, लाइक इंटीजर, सपोज इंटीजर डेटा, integer data, that is nothing but the first part of our node. Okay, that is nothing but the first part of our node. Next is, now second is nothing but the link part. Now this link part consisting what type of value? This link part consisting address of next node, address of next node. Okay, तो address किसमें स्टोर करते हैं हम लोग? पॉइंटर में। Okay, so we need to define it here. और वो किस टाइप का पॉइंटर है? स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, तभी उसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर नोड का एड्रेस स्टोर कर पाएंगे। ओके, because that link part contains the address of a complete node. This link part of first node contains the address of complete node. Okay, पूरे complete node का एक address वहाँ पर link में available होना चाहिए। Okay, for that reason we have to define it. Okay, so that must be the pointer, because pointer only can hold the address, है ना? Because pointer only can hold the address of some other thing. Okay, किसी और चीज का एड्रेस हमको होल्ड करवाना है तो पॉइंटर ही उसके लिए suitable है। Okay, because pointer can only hold the address of some other value. Okay, so now what type of pointer we have to create? Struct type pointer we have to create, that is node. Okay, so node asterisk, here I'm going to use next. Okay, here I'm going to use next. You can use link also, okay, because it is a part, है ना? लिंक को आप, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, आप लिंक भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इट इज अप टू यू। ओके, नेक्स्ट, here we have defined the node structure of node। एक यूजर नोड जो क्रिएट करने के लिए हमको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ओके, now what we have to do, we have to create one node। हमको क्या करना है, नोड को क्रिएट करना है। ओके, just to add to the empty linked list, है ना? एक नया नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम empty linked list में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, so within the main function void main, मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारी चीजें लिखने वाले हैं। ओके, इतना ध्यान में रखना अभी फिलहाल। ओके, जब आपको क्लास का कांसेप्ट अगर आपको यूज करना है तो क्लास का कांसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको क्लास का कांसेप्ट यूज नहीं करना है सो यू कैन डायरेक्टली राइट कोडिंग इनसाइड द मेन फंक्शन। ओके, और इन केस अगर आपको जैसे कि एट द बिगिनिंग अगर मान लो सपोज नोड इंसर्ट करना है या तो फिर एट द एंड या तो फिर किसी लोकेशन में नोड को ऐड करना है तो उसके फंक्शंस भी अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वॉइड मेन, मेन के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी चीजें हमको यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा हेड होगा, हेड होगा, है ना? हेड, so head is also one of the kind of pointer because it also holds the address of node, है ना? ये भी क्या कर रहा है, नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंटर में हमारा किस टाइप का होगा, नोड और नोड टाइप का होगा। ओके, सो आइदर वी कैन डिफाइन इनसाइड द मेन फंक्शन, हम लोग मेन फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, मेन फंक्शन के बाहर भी मींस ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, क्योंकि आपको किस तरीके से उनको डिफाइन करना है, आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे उनको, दैट इज अप टू यू। ओके, now here I am going to define that particular head pointer inside the main function। main function के अंदर मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। so node asterisk head, okay, node asterisk head, this is the starting point। okay, right now यहाँ पर मैं head को starting point कंसीडर कर रहा हूँ, आप start भी लिख सकते हैं, node asterisk start। okay, तो वहाँ पर क्या रहेगा, obviously
address of first node. KD because it is the starting point of our linked list. Okay. Next, second pointer also we need to create, है ना? Second pointer भी create करना पड़ेगा इसी टाइप का, ताकि हम लोग नए नोड में डेटा भी स्टोर कर पाए और उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर कर पाए. Okay. So here asterisk new node. Asterisk new node. Okay. अभी फिलहाल हमने ये दो पॉइंटर्स क्रिएट किए. ओके, हेड और न्यू नोड. आगे में अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम और पॉइंटर्स ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे. ओके. now what we have to do, we have to store, we have to हमको क्या करना है, हेड पॉइंटर मींस स्टार्टिंग में हमारा लिंक लिस्ट क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा ऑब्वियसली. सो हेड पार्ट मस्ट कंटेन द null value. Okay, head part must contain the null value because initially our linked list is empty. Initially our linked list is empty, so head part consists only null value. Okay, so we can store head equal to null. Okay, head equal to null. Okay, next head equal to null. Now we are going to create one node. अब हम क्या कर रहे हैं, node create कर रहे हैं. Okay, now how to create a node? Remember one more thing is that here we have to create the node. Okay, and during runtime it should be allocated. Okay, into the memory. हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग रन टाइम नोड क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज वन ऑपरेटर दैट इज नथिंग बट अ न्यू ऑपरेटर. ओके, in C++ we have to use new operator, and in C language we can use malloc function. Okay, with the help of malloc function we can allocate memory dynamically in the sense during runtime we can allocate memory. Okay, so here is also during runtime we have to allocate some memory. Okay, so what we have to do, we have to use new operator. Okay, with the help of new operator we can allocate memory dynamically, as we all know. Okay, so here new node equal to new node. New node equal to new node. Okay, so इससे क्या होगा? Okay, what will happen if this particular statement is encountered to the compiler? The particular new node is created, and that means that much amount of memory will be allocated somewhere. Okay, going to be memory allocated होगी. Okay, that is like this. Okay, and the address of that particular will be stored into the new node. Okay, एक नया node create होगा और उसका address new node में create store होगा. Like this, new node. It's a new node. Okay, this particular maybe suppose this much amount of memory will be allocated somewhere and its address will be stored to new node because it is a also pointer. ये new node क्या है, pointer. New node is the pointer. Okay, and pointer can hold the address of something. किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस पॉइंटर, है ना? So maybe suppose this is our new node. Okay, this is our new node. So its address will be stored to the pointer new node. Its address will be stored to the pointer new node. Okay, maybe suppose its address is 100, so its address will be stored over here. Okay, that means this points to this node. So new node क्या कर रहा है, उस particular node को point out कर रहा है, उस memory location को point out कर रहा है. Okay, here we have created new node. Now what we have to do, we have to initialize the data part and the link part. We have to initialize the data part and link part. Okay, so how to initialize? Okay, remember if you want to access the user defined data type members, अगर structure के members को अगर आपको access करना है तो आपके पास एक simple way है, just with the help of arrow operator we can access the structure member with a pointer value. Okay, pointer के साथ with the help of pointer we can access the structure member. Okay, if you want to access structure member through pointer then we can use arrow operator. हम लोग क्या यूज करते हैं, arrow operator का यूज करते हैं. Okay, now right now I am going to access this data. Okay, मुझे क्या करना है, इस data पार्ट को access करना है with the help of new node. So we have to, how can we access? Just before this I will have to show some message to the user that enter data. Okay, enter data value. Okay, any message you can give. Okay,
So I'm going to give a message like CO enter data. ओके एंटर डेटा डेटा एंटर करना है आपको अभी इस तरीके का मैसेज मैंने यूजर को प्रोवाइड किया ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू यूजर हैज टू एंटर डेटा ओके अब डेटा एंटर करेगा तो उसके लिए पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी ताकि उसी एड्रेस में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाए है ना सो सीन सीन के थ्रू मैं क्या करूंगा न्यू नोड न्यू नोड इस पॉइंटर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस कर रहा हूं ओके सो विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर का यूज करना है मुझे ओके बिकॉज़ वी आर यूजिंग हियर पॉइंटर ओके पॉइंटर के थ्रू अगर स्ट्रक्चर मेमोरी को एक्सेस करना है सो वी कैन यूज एरो ऑपरेटर सो न्यू नोड ऑफ डेटा okay with the help of this we can initialize the data part of a new node we can initialize the data part of our new node okay next now now remember, initially our linked list is empty. Initially our linked list is empty. Okay. Now we are going to add this node to the linked list. Okay. So its link part should contain what type of value? What value? Obviously null value because it is the first and last node of our linked list. Because initially our linked list is empty, we are going to add this node to the empty list. Okay, that means this is the first and last node. Okay, so obviously link part contains null value. Okay, so how can we store new node of length equal to null? Okay, link next. Okay, so new node. Now I am going to access the link part. I am going to access the link part of our new node with the help of new node pointer value. So new node, how can I access this link part? There is a name that is next. There is a name like next. Okay, so we can access this with the help of new node. Okay, so new node of next. New node of next equal to what? Equal to null. Okay, equal to what? Null. Why we are initializing it as a null? Because this is the first and last node. Because initially our linked list is empty. Okay, and we have created one new node. Initially our linked list is empty because that is equal to null. Initially our linked list is empty. That is what we can say that initially linked list here linked list is empty because head part contain null value. That means starting point will never starting point doesn't have any address of memory location. Okay, किसी भी memory location का address starting part में अभी available नहीं है. That means उस link part में link list में एक भी node available नहीं है. Okay, and here we are going to create one new node and we have to add it to the linked list. Okay, so that new node will be the first and last node. Okay, that new node will be the first and last node, and last node must contain the null value. Last node must contain the null value of the link part. Okay, so hence I am going to store the next part contain null value. Okay, so here new node is created. That means suppose if you have entered data like 1, so 1 will be stored over here, and null value will be stored over here. Null. Okay, null value is stored into the first node. Okay, now what we have to do, we have to add this node into the linked list because linked list is still empty. Linked list is still empty. Why? Because head part contains null value. Okay, now what we have to do, we have to store the address of this to the head part. Now we have to store the address of this new node to the head part. Now how can we store? How can we store? Obviously here like this. Okay, head equal to head equal to head equal to what? Okay, head equal to what? Head equal to we have to store the address of this new node into the head part so that the head part can point to this. Okay, and the address of this is stored in new node. है address of this that is 100 हमने कहाँ store किया है? New node में store किया है ना? Okay, so that 100 is stored into the new node, so we can store this 100 value to the head with the help of new node. So we can initialize head by new node. So head equal to new node.
Okay, so that new node contains 100 value, new node contain 100 value. Okay, so this 100 we are going to store into the head. Okay, 100 को हमने head में store कर दिया. Okay, so 100 value 100. Okay, that means that head can points to this node. Okay, that head can points to this node. Head में उस node को point out किया. That means we have added one node into the linked list. That means we have added one node into the linked list. Okay, but remember this should be happen only and only when our linked list is empty. Okay, this should be happen only and only when our linked list is empty. Why? Because initially head is null. Okay, and we have to store the address of first node into the linked list. Okay, so address of first node is stored into obviously the head part or starting part. Okay, so hence we have to do this. Okay, इसलिए हमने इसको use किया. Okay, if in case we have created one new node, हमने फिर से एक नया node create किया जिसको linked list में हमको ऐड करना है. Okay, इस लिंक लिस्ट में ऐड करना है, बट उस न्यू नोड का एड्रेस हम हेड में स्टोर करेंगे क्या? नहीं. अगर हेड में स्टोर करते हैं तो हेड उस न्यू नोड को पॉइंट आउट करेगा और पहला नोड हमारा लिंक लिस्ट से हट जाएगा. ओके, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते. हम क्या करना चाहते हैं, हमारा नोड जब भी हम नया नया नोड क्रिएट करते जाएंगे लिंक लिस्ट में नेक्स्ट नोड में ऐड होता जाए. ओके, this previous existing linked list में उसमें क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए. Okay, so hence we are not executing this part every time. Okay, we are not executing this part every time. So this should be kept under one condition. This should be kept under one condition, that is if head equal to null. Okay, this should be executed only and only if head part contain null value. Okay, this should be executed only and only if head part contain null value. Okay, head part में अगर null value है तभी वो execute होगा, otherwise फिर next action उसने execute करना चाहिए. मीन्स अभी linked list हमारा empty नहीं है. else part में क्या होगा, else part कब execute होगा, जब हमारा linked list empty नहीं है. And if part execute कब होगा, जब हमारा linked list empty है. That means head part is null value. Head part contain null value, so head equal to new node. Are you getting? समझ में आ रहा है? So यहाँ पर ये if part हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस कंडीशन को हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्यों? अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते हैं तो एवरी टाइम जब हम नया नोड क्रिएट करते जाएंगे हेड पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर होते जाएगा. ओके, और प्रीवियसली एडेड नोड क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे हमारी लिस्ट में से, है ना? Because every time we are updating the head part, and this should not happen. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. Every time head part अपडेट नहीं होना चाहिए. First time only. If your linked list is empty and you have to add a new node, thereafter only that head part contain the address of new node. Otherwise that head part does not update it. Okay? Otherwise head part does not update it. हेड पार्ट को हमको अपडेट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमारा लिंक लिस्ट अब एम्प्टी नहीं रहा है ना. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नाउ if suppose we have created one new node. हमने एक नया नोड क्रिएट किया. ओके, एक नया नोड क्रिएट करते हैं. जैसे सपोज first, if we have created one new node we have created like this, suppose. Okay, and its address is stored in the new node. Its address is stored in, maybe suppose like 200 is the address. Okay, so once again, obviously if you have to create one linked list, then repeatedly execution of these statement must be there, है ना. यहाँ पर repeated execution होना चाहिए. उसके लिए हम लोग while loop अप्लाई करने वाले हैं आगे में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ध्यान में रखो कि अगर मान लो सपोज नया नोड फिर से क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो डेटा पार्ट मस्ट बी देयर. डेटा पार्ट हमको एंटर करवाना है. ओके, बिफोर एंटरिंग डेटा वी मस्ट हैव टू क्रिएट न्यू नोड.
हमको नया नोड क्रिएट करना है. ओके, सो न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड. ओके, एक नया नोड क्रिएट हुआ. सो हियर इट हैज द एड्रेस लाइक दिस. ओके, 200. ओके, 200 न्यू नोड में स्टोर किया हमने एड्रेस. यहाँ पर न्यू नोड क्या है, पॉइंटर है जिसने किसको पॉइंट आउट किया, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से जो भी मेमोरी लोकेशन हमने एलोकेट करवाया उसका पॉइंट, उसका एड्रेस उस न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर करना है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ these statements, with the help of these statements we have entered data and store the null value into the next part of new node. Okay, so obviously we have to store data, maybe suppose like 2 and null. null हाँ, क्यों क्यों null रहेगा, क्योंकि ये नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, और नया नोड हमेशा एट द एंड इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ. ओके, नया नोड हम लोग यहाँ पर एट द एंड इंसर्ट कर रहे हैं. सो एवरी टाइम दैट नेक्स्ट पार्ट कंटेन्स द null value. ओके, of every new node. Okay, now here we have created our new node. Now where that linked list, where that node we have to insert, कहाँ पर हमको इंसर्ट करना है, इनिशियल बीच में स्टार्टिंग में हमको इंसर्ट करना है कि नहीं, हमको इसके बाद एक नया नोड इंसर्ट करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, हेड पार्ट को अपडेट कर देंगे. नहीं, हेड पार्ट को अपडेट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि हेड पार्ट ऑलरेडी किसी और नोड को पॉइंट आउट कर रहा है. दैट मींस our linked list is not empty. Okay, so what we have to do, we have to execute this else part. हमको क्या करना है, else part को execute करना पड़ेगा. Okay, now what we have to do, कैसे करेंगे हम लोग. ओके, हमको एक नया नोड इंसर्ट करना है टू द लिंक लिस्ट. ओके, सो यहाँ पर हमको अब कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको फेच करना पड़ेगा हमको. ओके, इसको अपडेट करना है. ओके, हमारा न्यू नोड कहाँ इंसर्ट हो रहा है, एट द एंड. ओके, एट द एंड ऑफ आवर लिंक लिस्ट. और एट द एंड इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना पड़ेगा, है, तभी हम लोग उस पर्टिकुलर नोड को लिंक लिस्ट में ऐड कर पाएंगे. ओके, तो इस लिंक पार्ट को एक्सेस करना पड़ेगा हमको. इस लिंक पार्ट को हमको क्या करना है, अपडेट करना है. क्या करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट इस न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पर, इस न्यू नोड की जो भी वैल्यू है यहाँ पर हमको स्टोर करना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हेड पार्ट को मूव करवाएंगे. हेड पार्ट को मूव नहीं करवा सकते, हेड पार्ट को मूव कर दिया तो वो नोड वहां से लिंक लिस्ट से हट जाएगा. तो हमको क्या करना है, एक नया पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है. ओके, एक नया पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है. कैसे, यहाँ पर हम लोग एक और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं. इट इज asterisk temp नाम का हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करें. ओके, ताकि हमको अगर इनकेस नेक्स्ट नोड ऐड करना है तो फिर ट्रैवर्स करना है तब हम उस पॉइंटर का यूज करेंगे. ओके, अगर हम हेड पार्ट को अपडेट करते हैं तो उसके नोड्स वहां से लूज हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, और वो हम अफोर्ड नहीं करते. इसलिए हम लोग क्या करें, नया टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं. ओके, जो क्या करेगा, इनिशियली फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा. ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक स्टेटमेंट को चेंज करना है. दैट इज हेड इक्वल टू, इफ हेड इक्वल टू नल. ओके, हेड इक्वल टू अगर हम नल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम, हेड इक्वल टू नल है, दैट मींस our linked list is empty. Okay, so head equal to new node. यहाँ पर हम लोग क्या करें, नया नोड को इंसर्ट कर दिया. Okay, next. So अब मान लो सपोज हमने एक नया टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया, टेम्प पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, और इनिशियली अगर हेड नल है तो इसको भी हमको अपडेट करना है. क्यों, क्योंकि टेम्प में टेम्प should also point to the first node. Okay, temp should also point to the first node so that we can traverse or we can fetch to the particular node. Okay, हम या तो traverse कर सके और फिर किसी particular node के ऊपर fetch कर सके. For that reason we have to use this temp variable, temp pointer variable. Okay, so this temp should also contain the address of first node. Temp. Okay, and this should point here. So how to point this? कैसे point करेगा temp? Just to store the new node address into the temp also. So we have to update this. So head equal to temp equal to new node. Okay,
हेड इक्वल टू टेम्प equal to new node. Okay. So with the help of this, what will happen? Head points to new node as well as temp also points to new node. Okay. So head ने क्या किया? जिस new node को point out किया उसी new node को temp ने भी point out किया. Okay. So temp also consists of the address of first node. Okay, that is number 8. Okay. Now we need to add one more node whatever we have created this. है ना? हमको क्या करना है अभी इस न्यू नोड को लिंक लिस्ट में ऐड करना है. ओके. तो वो कैसे करेंगे? अब हेड पार्ट तो नल नहीं है. दैट मींस हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस न्यू नोड जो भी हमारा फर्स्ट नोड है उस न्यू नोड फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में इस न्यू नोड का एड्रेस हमको स्टोर करना पड़ेगा. तो एल्स पार्ट में क्या करेंगे? temp pointer के थ्रू temp of next it is temp इस pointer के थ्रू इस next को एक्सेस करें. ओके. एंड वी नीड टू अपडेट इट, है ना? temp इस pointer के थ्रू इस next part of first node को हम लोग एक्सेस करें. दैट इज temp of next. उसमें क्या स्टोर करना है? न्यू नोड की वैल्यू दैट इज 200, है ना? सो इक्वल टू न्यू नोड. temp of next equal to new node. Okay. Temp of next equal to new node. That means we have updated the next part of our first node. Okay. So we just update it. हम अपडेट कर देते हैं उसको. जो null था अभी क्या बन गया? एड्रेस बन जाएगा. इसमें क्या स्टोर हो जाएगा? इनिशियली यहाँ पर null वैल्यू थी. अब इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है? temp of next मींस इस temp पॉइंटर के थ्रू हम लोग उस लिंक नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं. उसमें क्या डाल रहे हैं? न्यू नोड की वैल्यू. सो न्यू नोड की वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ नोड व्हिच इज न्यूली क्रिएटेड, है ना? न्यू नोड की वैल्यू दैट इज एड्रेस ऑफ नोड. तो उसको वहां पे स्टोर कर देंगे. सो 200 will be stored over here. Okay. That means this link part contains address of another node. So that means that will point to the next node here. Okay. Okay. समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या किया? temp इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू उस लिंक पार्ट को हमने क्या किया? एक्सेस किया और उस लिंक पार्ट में इस न्यू नोड के एड्रेस को स्टोर करवाया ताकि वो लिंक पार्ट में उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल हो. ओके. एवरीथिंग समझ में आ रहा है? एवरीथिंग अरे अवेलेबल हो भी कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? टोटल 56 स्टूडेंट्स आर देयर एंड नोबडी विल रिप्लाई. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. क्यों ऐसा? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया वो तो बोलो. मुझे रिस्पॉन्ड करना है आप लोगों को. इतना ध्यान में रखना है. मैसेज मत करो. मैं मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ. मैसेजेस नहीं. हाँ क्लियर नहीं थी बीच में. तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? आया सर. और आवाज क्लियर नहीं है तो आपने मुझे रिप्लाई किया कुछ बताया? और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप लोग आंसर भी नहीं दे रहे. अभी विजय लक्ष्मी लेफ्ट हो गए. वेरी गुड. मिल सकता है. चलो नहीं किया टेबल क्या है? चालू हो रहा है. हाँ हो रहा है. व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पर क्या किया? एक टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया. ओके. टेम्प नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया. क्यों? ताकि हम लोग हेड पार्ट को अपडेट ना करें,
है ना। हेड पार्ट को हमको अपडेट नहीं करना। अगर हेड पार्ट को आप अपडेट करोगे तो आपके प्रीवियसली एडेड जो नोड है वो उस लिंक लिस्ट से हट जाएंगे। ओके, और ऐसा हम अफोर्ड नहीं करते। फॉर दैट रीजन वी हैव यूज्ड one temporary pointer variable, okay, to access the link part of our nodes, okay, so that we can add new node into the linked list. Okay, so hence we have updated head equal to temp equal to new node. Okay, so head में जो पॉइंटर सॉरी जो एड्रेस स्टोर किया है वही एड्रेस हमने टेम्प में भी स्टोर किया है। ओके, are you getting? So temp points to the first node as well as head also points to the first node. Okay, now we are not updating the head part. Okay, we will leave it. We will leave it as it is because head part must contain the address of first node as we all know. Okay, so now we have to update the particular temp part. Okay, हमको क्या करना है, temp इस पॉइंटर को अपडेट करना है। ओके, ताकि हम लोग नेक्स्ट नोड को एट द एंड ऐड करते जाए। ओके, सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या स्टोर किया है, टेम्प अभी फिलहाल किसको पॉइंट आउट कर रहा है, टेम्प अभी फिलहाल फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसका एड्रेस 100 है। सी टेम्प टेम्प में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया हमने, दैट इज 100। इज इट क्लियर, है ना। टेम्प में फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने स्टोर किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस न्यू नोड इनटू द एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में हमको नया नोड इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हियर वी हैव डन टेम्प ऑफ नेक्स्ट। हमने क्या किया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प इज द पॉइंटर वेरिएबल एज वी ऑल नो। टेम्प इज अ पॉइंटर वेरिएबल और उसमें किसको पॉइंट आउट किया है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किया, मींस उसमें जो भी डेटा पार्ट लिंक पार्ट है उसको वो एक्सेस कर सकता है। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज टेम्प ऑफ नेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट दिस, है ना। दिस वी आर गोइंग टू अपडेट, दिस वी आर गोइंग टू अपडेट। इनिशियली इट इज नल, इनिशियली क्या था, ये इनिशियली नल था ना, क्योंकि नया पहला नोड इंसर्ट किया, पहला नोड जब क्रिएट हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर किया था हमने, नल स्टोर किया था। इनिशियली जब हमने फर्स्ट नोड ऐड कर दिया था, फर्स्ट नोड जब क्रिएट हुआ था, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या स्टोर किया था, नल वैल्यू स्टोर किया था। सो नल वैल्यू वहां पर स्टोर है ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अपडेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट नोड, है ना। फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट हमको अपडेट करना है, कैसे, विद द एड्रेस ऑफ दिस न्यू नोड। इस न्यू नोड के जो एड्रेस है उससे हमको उसको अपडेट करना है, इसलिए हमने क्या किया, इस टेम्प पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट को एक्सेस कर रहे और अपडेट कर रहे। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू व्हाट, न्यू नोड। न्यू नोड क्यों कर रहा है, क्योंकि न्यू नोड में हमारा हमने जो नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस स्टोर्ड है। ओके, सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। सो न्यू नोड की जो भी वैल्यू है वो टेम्प ऑफ नेक्स्ट में जाके स्टोर हो जाएगी, वो हो गई, दैट इज क्लियर नहीं है। हाँ बस। ये टेम्प न्यू नोड में जो वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रहा है क्या, कैन यू सी दिस, न्यू नोड में जो वैल्यू है वो हम कहाँ अपडेट कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ओके, दिस इज द नोड। इस नोड में दो पार्ट होता है, एक तो डेटा पार्ट होता है और दूसरा लिंक पार्ट होता है। थोड़ी देर रुक जाओ, इस नोड में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेटा पार्ट और दूसरा लिंक पार्ट। ओके, और टेम्प ने अभी फिलहाल किसको पॉइंट आउट किया है, फर्स्ट नोड को, जिसके नेक्स्ट पार्ट में फिलहाल नल वैल्यू स्टोर थी, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारा जो नया नोड हमने क्रिएट किया उसको लिंक लिस्ट में ऐड कर सके। तो अपडेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, मींस इस टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यू नोड की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब न्यू नोड में क्या है, 200 है ना। सो 200 इज गोइंग टू स्टोर इनटू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। ओके, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, न्यू नोड की वैल्यू, दैट इज 200। ओके, सो 200 इज स्टोर्ड। ओके, एंड एज यू ऑल नो, हाँ, as we all know that link part contains the address of next node, that means that link part points to
द नेक्स्ट नोड, है ना। सो नेक्स्ट नोड में यहाँ पर लिंक पार्ट में क्या स्टोर किया हमने, 200 स्टोर किया, दैट मींस इट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, सो इट विल पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, तो इसने इसको पॉइंट आउट किया। ओके, ओके, इज दैट क्लियर? now now what we have to do, we have to update this, अपडेट दिस टेम्प। अब हमको टेम्प को अपडेट करना है, क्यों? ताकि हम लोग नया नोड उस लास्ट नोड के बाद इंसर्ट कर सके। ओके, ताकि हम नया नोड उस लास्ट नोड के बाद इंसर्ट कर सके, हेंस वी हैव टू अपडेट द टेम्प। ओके, सो टेम्प को हम लोग अपडेट कर देंगे, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। ओके, लाइक दिस, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। सो इस टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू नोड में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी टेम्प में। ओके, दैट इज 200, दैट इज 200। नाउ दिस टेम्प पॉइंट्स टू लास्ट नोड, नाउ दिस टेम्प पॉइंट्स टू, ये इसको पॉइंट आउट नहीं करेगा, अब इसको पॉइंट आउट करेगा। ओके, आप टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इफ वी हैव क्रिएटेड वन मोर नोड, एक और नोड अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं करेंगे तो क्या होगा, एक और नोड हमने क्रिएट किया, सपोज, ओके, सपोज एक और नोड क्रिएट किया हमने, एक और नोड हमने क्रिएट किया यहाँ पर। ओके, उसका डेटा पार्ट में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे इनिशियली, सपोज 3, सपोज 3, एंड नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या स्टोर किया, नल वैल्यू स्टोर किया, नल। ओके, ये नया नोड, इसका एड्रेस उस न्यू नोड में स्टोर्ड है, जैसे कि ओके, सपोज दिस न्यू नोड, हमने न्यू नोड में हमने क्या स्टोर किया, 300 एड्रेस स्टोर किया, मींस इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, इस नोड को हम लिंक लिस्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, इनिशियली हमारा लिंक लिस्ट तो एम्प्टी नहीं है, दो नोड ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो इफ वाला कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक में क्या करना है हमको, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को हमको अपडेट करना है, तो टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस सेकंड नोड को, तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को हमको अपडेट करना है, कैसे, न्यू नोड से। सो न्यू नोड में क्या स्टोर किया हमने, 300 स्टोर किए, है ना, देख सकते हैं न्यू नोड में 300 स्टोर किए। सो इस 300 को कहां अपडेट करना है, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इस न्यू नोड को कहां अपडेट करना है, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में। तो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में अभी फिलहाल नल वैल्यू है, तो उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, दैट इज विद द वैल्यू ऑफ न्यू नोड, that is 300, है ना। So here we are updating it, 300 हमने अपडेट कर दिया न्यू नोड के टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, दैट मींस अब ये 300 क्या है, एड्रेस है न्यू नोड का, तो उसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट किया। ओके, now again we have to update this temp part so that we can insert new node at the end, after this node we have to insert it। ओके, सो temp को फिर से अपडेट कर दो, temp इक्वल टू न्यू नोड, तो temp में भी क्या स्टोर कर देंगे हम लोग, न्यू नोड का एड्रेस है 300 स्टोर किए। सो temp किसको पॉइंट आउट करेगा, अभी इस न्यू नोड को पॉइंट आउट करेगा। ओके, अभी फिलहाल इसको पॉइंट आउट कर रहा था सेकंड नोड को, अब थर्ड नोड को पॉइंट आउट करेगा। ओके, लाइक दिस, third node, it points to the third node। okay, is that clear? okay, now अब देखो हम लोगों ने एक नोड इंसर्ट किया तो इतना कोड लिखना पड़ा, अगर इन केस अगर हमको मल्टीपल नोड्स इंसर्ट करना है तो हमको हम यही सेम चीजें बार बार लिखेंगे कि नहीं, we have to execute this much amount of code multiple times, हमको क्या करना पड़ेगा, वही कोड मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो वी नीड टू अप्लाई सम लूपिंग स्टेटमेंट्स, हमको लूपिंग स्टेटमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे सो दैट दिस मच कोड इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मान लो सपोज इस न्यू नोड के पहले, इस स्टेटमेंट के पहले हमको व्हाइल अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाइल, हियर आई एम गोइंग टू राइट व्हाइल
एक वेरिएबल ले लेते चॉइस, चॉइस वेरिएबल ले लेते, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करेगा, और चॉइस की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो ये चॉइस इक्वल टू 1, तो उसके लिए इस चॉइस को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इंटीजर चॉइस इक्वल टू 1, एंड आफ्टर दिस मच कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ये भी होगा, और इसके बाद हम फिर से पूछेंगे उसको कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर से आपको कंटिन्यू करना है क्या, उससे चॉइस से वैल्यू रीड करेंगे, अगर 1 है तो कंटिन्यू होगा और 0 है तो डिसकंटिन्यू होगा। ओके, सो सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू 0 और 1 सीन चॉइस, चॉइस की वैल्यू हम लोग रीड करेंगे, चॉइस की वैल्यू अगर 0 है दैट मींस यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, और चॉइस की वैल्यू अगर 1 है दैट मींस यू वांट टू कंटिन्यू, मींस यू वांट टू ऐड वन मोर नोड। ओके, इसका मतलब आपको फिर से एक और नोड इंसर्ट करना है। ओके, दिस इज द व्हाइल लूप, एंड ऑफ व्हाइल लूप, है ना। नाउ वी नीड टू, अब देखो मान लो सपोज हमने यहाँ पर लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, अब हमको क्या करना है, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट क्रिएट किया, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है। ओके, तो डिस्प्ले करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट में एक ही नोड रहेगा क्या, जरूरी नहीं एक ही नोड रहेगा, मल्टीपल नोड्स भी हो सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा ना। हाँ, एक और चीज, आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फर्स्ट नोड से आप लोग लिंक लिस्ट डिस्प्ले करोगे, है ना। तो फर्स्ट नोड को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, हेड के थ्रू एक्सेस करेंगे, या तो फिर हमारे पास एक और पॉइंटर वेरिएबल दैट इज टेम्प, उसके थ्रू भी एक्सेस करेंगे। ओके, हेड के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं सारे नोड्स को, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नोड को विजिट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट नोड को अगर आप विजिट करना है तो हेड को आप अपडेट करोगे क्या, नहीं, हम हेड को अपडेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हेड शुड ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ आवर लिंक लिस्ट, head should always points to the first node of our linked list, तो head को हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, so that means we cannot access all nodes of our linked list with the help of head node, so obviously we have to use one temp pointer variable, temp pointer variable से हम लोग उसको access करेंगे। so right now temp points to the last node, तो अब हम क्या करेंगे, temp को अपडेट करेंगे, कैसे, temp equal to head कर देंगे, that means temp क्या करेगा, फर्स्ट नोड को अब पॉइंट आउट करेगा, सो टेम्प इक्वल टू हेड, इससे क्या हो जाएगा, टेम्प क्या करेगा, हेड को पॉइंट आउट करेगा। ओके, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू हेड के इसका मतलब आप टेम्प क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, इट विल नॉट पॉइंट्स टू दिस, मींस ये हट जाएगा एंड इट विल पॉइंट्स टू दिस। ओके, दिस लिंक इज, वो लिंक वहां से हट जाएगी। ओके, एंड this points to the first node, 10 points to the first node. Okay, now we can apply our loop, okay, to traverse the linked list. Okay, to traverse the linked list we have to apply the loop. Okay, so how, while temp not equal to null, temp not equal to null, जब तक temp की वैल्यू null नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है, लूप को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, इनिशियली टेम्प अभी क्या है, टेम्प ने अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किए, टेम्प अभी क्या है, टेम्प ने फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किए, सो टेम्प का फर्स्ट यहाँ पर 100 है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प अभी क्या है, टेम्प इक्वल टू 100 है, 100 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, टेम्प से डेटा को एक्सेस कर लेंगे, सो सी आउट स्लैश p temp of डेटा, टेम्प पॉइंटर वेरिएबल से डेटा को एक्सेस कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्प को दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। ओके, किससे, नेक्स्ट नोड के एड्रेस, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमने कहां स्टोर किया है, फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में,
है ना। फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको अपडेट कर दो। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट से हमने टेम्प को इनिशियलाइज किया। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है? टेम्प टेम्प ने जिसको पॉइंट आउट किया, ओके, वहां का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 200। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प को 200 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट दैट इज 200 दैट आई एम गोइंग टू स्टोर इनटू द टेम्प, ओके। सो हियर दिस 200, सो दिस will broken, and ये break हो जाएगा, and this temp will point to the next node। temp किसको नोड पॉइंट आउट कर रहा है? सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, ओके। अगेन वी विल डिस्प्ले द temp ऑफ डेटा मींस दिस मच। इतना पार्ट क्या होगा, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा, ओके। दैट इज temp ऑफ डेटा प्रिंट करेगा। इनिशियली सबसे पहले क्या प्रिंट किया, temp ऑफ डेटा दैट इज 1, है ना, 1 प्रिंट किया उसने, 1 प्रिंट किया। फिर इसको पॉइंट आउट किया टेम्प ऑफ डेटा दैट इज टेम्प ऑफ डेटा, एंड टेम्प ऑफ डेटा से क्या प्रिंट किया, फिर 2, ओके। ये 1 प्रिंट किया उसने, फिर 2 प्रिंट किया, ओके। नेक्स्ट टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट दैट इज 300, ओके। उससे हमने किसको अपडेट किया, टेम्प को अपडेट किया। सो अभी टेम्प में क्या स्टोर है, 300, है ना। That means temp points to this node, इस नोड को अभी पॉइंट आउट कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ओके। फिर से चेक करेगा temp की वैल्यू नल है क्या, नहीं, temp की वैल्यू तो 300 है। सो 300 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन सेटिस्फाइड। सो इट विल प्रिंट temp ऑफ डेटा। अब temp के डेटा में क्या है, 3 अवेलेबल है, तो उसको प्रिंट कर देगा दैट इज 3, ओके। और फिर से हम लोग टेम्प को टेम्प ऑफ नेक्स्ट से अपडेट कर रहे हैं। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल है, तो टेम्प को हम लोग अपडेट कर रहे हैं, टेम्प इक्वल टू नल। सो दिस विल बी रिमूव्ड एंड नल, नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, टेम्प इक्वल टू सॉरी टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई की भी टेम्प की वैल्यू अभी नल हो गई है ना। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि टेम्प की वैल्यू नल है, सो एग्जिट, ओके। सो ये पार्ट किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जस्ट टू डिस्प्ले द लिंक लिस्ट। दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लिंक लिस्ट एंड दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स, Yes, sir. कोई डाउट है, नहीं है सर। नहीं है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछूंगा, इतना ध्यान में रखना, कौन से पार्ट के लिए कौन सा कोड लिखना है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। कोई अगर डाउट होगा तो अभी पूछ लो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ओके। नहीं है ना।